And after Prime Minister Modi's veiled dig at the opposition for caste-based politics, now Samajwadi Party's Amit Jamei has hit out at Prime Minister for his remark. He has said, and I quote, "Prime Minister forgot to take Sita Ma's name along with Lord Ram. People are being lynched in the name of religion." Let's listen in. प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आज भगवान श्री राम का नाम लिया तो वो माँ सीता का नाम भूल गए। हमें लग रहा था कि वो श्री रामचंद्र जी कहेंगे, जो हमारे भारत के हर कोई जो बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन सीता माँ का नाम उसमें बीच में नहीं आया। और हम ये प्राइम मिनिस्टर साहब से उम्मीद रखते हैं कि वो इस देश में दोबारा से जो सौहार्द पनपा है, धार्मिक ध्रुवीकरण, समाज को बांटने का काम, किसी को छोटा दिखाने का काम, वो ना करें जो वो अभी करने की चेष्टा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छी बात बोली है। हमारे देश में आज सोचिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी के देश में किसी मुख्यमंत्री का घर गंगा जल से धुलवाकर जातिवाद की घृणात्मक कार्रवाई की जाती है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी जो मेहनतकश लोग हैं, शादी ब्याह करना हो तो जाति के नाम पे उनका घुड़चड़ी नहीं होने दिया जाता है। उनको आप सोचिए कि आर्मी फोर्स लगानी पड़ती है, पीएससी लगानी पड़ती है अगर ब्याह कराना हो। हमारे इसी देश में किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मॉब लिंच कर दिया जाता है। And CNN News 18's Arun Dhanta is joining us on this story. Arun, a very good morning to you. So after Prime Minister Modi's caste-based politics remark at the opposition, now we have this reaction coming in from Samajwadi Party, where Samajwadi Party's Amit Jamei has hit out at Prime Minister. In fact, he has also said that the people from the lower caste face all sorts of oppression. What do you have to tell us more about it? Well, see, yesterday it was Vijayadashmi celebration where Prime Minister Modi was participating in Dwarka, and while addressing the gathering, Prime Minister Modi, spoke on various issues. Let me quickly highlight 2 or 3 important points. He talked about the division which few people are trying to create in the country on the basis of caste and region. And of course, his direct dig was at the opposition parties. If you remember, last month itself, when Bihar government released that caste-wise data of its citizens, and there are various other opposition ruled states which are also going forward for the caste-based census, and in fact they are demanding a nationwide caste-based census. And that was the reason why Prime Minister Modi was targeting those parties, saying that today is the day, Vijayadashmi is the day when we have to, move away from these forces, move away from these negative people, move away from these negative energies, and focus on the positivity and of course nation building. And secondly, he also spoke about the patriotism is something which is important. On this day, Vijayadashmi, it's not only burning the effigy of Lord Ravana or celebrating Lord Rama, but it is also important to have that feeling of patriotism and keeping negativity and negative people away. And thirdly, importantly, he gave around 10 important points, 10 fronts which he wanted people to follow, which of course includes digital transaction, local for vocal, organic farming, water conservation. So these are the important points that Prime Minister Modi highlighted in his speech yesterday. And of course, it was a direct attack on the opposition parties who were demanding that caste-wise census. Remember, after that Bihar caste-wise census, Prime Minister Modi in an address at that time said that this is to divide. All right, Arun, please stay with us. We have Samajwadi Party's Fakhrul Chand joining us on the broadcast. Mr. Chand, a very good morning to you. So, Mr. Chand, how would you like to react on the statement that was made by Prime Minister Modi yesterday during the Dussehra celebrations, in which he claimed that the people should ignore the forces that are trying to divide India on the basis of caste? अब देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी वो जातवाद की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि अभी कुछ दिन पहले
भारत सरकार ने जात के नाम पे एक योजना शुरू करने का काम किया है। इस पे क्या कहना है? जो एनडीए गठबंधन में उनके साथ पार्टियां हैं, जो जात के नाम पे पार्टियां बनी हुई हैं, जिनको लेके वो सरकार चला रहे हैं, सरकार में आगे चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, उस पे क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये कहते कुछ है, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये योजनाएं चलाएंगे जात के नाम पे, ये जात के नाम वाली पार्टियों को अपने साथ रखेंगे, परिवार के नाम वाली पार्टियों को अपने साथ रखेंगे, लेकिन जब बोलना होगा तो ये खुलेआम बोलते हैं। लेकिन आप जब भी इस तरीके कोई वादा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता से बातें करती है, तो जो कथनी वो करनी में है, इनका बड़ा फर्क है। देश के प्रधानमंत्री जी को जब क्षेत्रवाद, तो जातवाद, इन सब बातों को कहना चाहिए, तो जो जात के नाम पे योजना शुरू की है उसको बंद कर देना चाहिए। जो जात के नाम पे पार्टियां हैं, परिवार के नाम पे पार्टियां हैं, उन पार्टियों को अपने एनडीए गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए, तब इस बात को कहा जाए देश से जात की राजनीति समाप्त हो, देश में सब मिल के चले, देश तरक्की करे, ये सब चाहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हम तो समाजवादी पहले से कहते आए हैं कि जो वादे जनता से करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, और ये बात इनकी योजनाओं से, इनकी बातों से सब समझी जा सकती है। फखरुल चंद जी हमारे साथ बने रहिए। वी ऑल्सो हैव बीजेपी's Anila Singh joining us. Ms. Singh, a very good morning to you. So we have SP's Fakhrul Chand with us, who is claiming that BJP says something else and does something else. BJP Prime Minister Modi yesterday said that people need to ignore the forces that are trying to divide people on the basis of caste, but SP claims that BJP itself does caste-based politics. My Ram to all, when we very well know that what type of mindset this particular red topi ki gundagardi wali party, Samajwadi Party has. You can very well understand when their party president, national president, Mr. Akhilesh Yadav tweets on the landing of Chandrayaan, Chand Mubarak. So they should not preach us that what is right, what is wrong. Honorable Prime Minister of this great nation simply said that we should not divide on the lines of caste and religion. This is what he pleaded. And they are trying to find politics into it, because they are in habit of getting some sort of privileged mindset from the political parties who are deep into appeasement. When we talk about Uttar Pradesh, when we talk about this great nation of ours, the political heads ruling the state and the nation, they are not into appeasement politics, and they must very well understand. And what they are talking about lynching, if they have got little sense, they can go and see. The Hindus are being targeted by one particular gundas and the criminals of one particular religious community, and they will come to know in comparative analysis that who is more targeted. So let us talk on facts, not on fiction. All right, Ms. Anila Singh ji, please stay with us. फखरुल चंद जी, आप कैसे जवाब देना चाहेंगे अनिला सिंह को? आप इनकी बातों से देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं मुझे और कोई रिएक्ट करने के, कि इनको इस पे भी दिक्कत है कि चांद मुबारक कहा जाए, और इनकी क्या मानसिकता इस पार्टी की पूछी जाए कि अगर चंद्रमा और चांद कह दिया जाए तो इनको इसमें भी दिक्कत है। लेकिन अनिला जी इस पे नहीं बताएंगे कि केंद्र की सरकार ने जो जात के नाम पे योजना शुरू की है उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं। गुंडा वाली पार्टी कही इन्होंने, बहुत अच्छा किया इन्होंने कि हमें गुंडा वाली पार्टी कही। किसानों पे गाड़ी चलाने वाले लोग इनके साथ हैं, यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद इनके साथ हैं, मंत्री इनके साथ हैं जिनके घरों में हत्या हो जाती है, उनके साथ वो सांसद हैं जो अब थानों से अपहरण के आरोपियों को छुड़ा ले जाते हैं, लेकिन गुंडागर्दी का आरोप समाजवादियों पर लगाएंगे। तो देखिए, ये जात के नाम पे देश को बांटने वाले लोग हैं, धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार में आने वाले लोग हैं, और इस देश की महिलाएं वो धरने पे बैठी रहती हैं अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन वो गुंडा वो पूरे देश में घूमता रहता है, रैलियां करता रहता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस गुंडे को, उन यौन उत्पीड़न के आरोपियों को बचाने का काम करती है। तो इनसे हम समाजवादियों को कम से कम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश को बांटने वाले लोग, जात के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, माँ बहनों के साथ अत्याचार करने वाले लोगों को इस देश की जनता 2024 में जवाब देने का काम करेगी।
All right. Miss Anila Singh ji, how would you like to respond to that? बिल्कुल, देखिए ऐसा है पखुल चंद जी, आप लोगों ने तो लगा दिए ना, अपने पोस्टर लगा दिए ना कि मेरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो देश का प्रधानमंत्री होंगे अगले। तो ये एक लड़ाई जो आप लोगों के बीच में हो रही है, केवल और केवल एक धर्म जाति को लेकर के वोट बैंक पॉलिटिक्स जो आप करते हैं, ठीक है, हम नहीं करते। हमारे लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म और जाति से आता है, वो कमजोर है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, पर जाति को लेके राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कि आप लोग करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि आप लोगों के राजनीतिक दल ये जाति आधार हैं, क्षेत्रीय दल हैं। हाँ, राष्ट्रीय दल बनने का प्रयास किया तो था, अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश में जाके चुनाव लड़ना चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने आईना दिखा दिया ना। हाँ, कमलनाथ जी ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किस प्रकार से संबोधित किया था? क्या मुझे यहाँ फिर से बोलने की आवश्यकता है? तो आप लोग जो जाति के आधार पे राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पे राजनीति करते हैं, वो गलत बात है। जातियां सच्चाई हैं इस राष्ट्र की, परंतु उनको मजबूत करिए, उनके साथ राजनीति मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। अनिला जी, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के साथ होने से या ना होने से कोई समाजवादी पार्टी मैदान छोड़ के भागने वाली नहीं है। और जब आप जात के नाम पे राजनीति की बात करते हैं तो क्यों आप अनुप्रिया पटेल को साथ लिए हैं, संजय निषाद को साथ लिए हुए हैं, राजभर को साथ लिए हुए हैं, बिहार की पार्टियों को अपने साथ लिए हुए हैं, महाराष्ट्र में अपनी पार्टियों को साथ लिए हुए हैं। तो देखिए, जात के नाम पे दलों को अपने साथ रखिए, जात के नाम पे आप योजनाएं चलाइए, तो वो आपके लिए सही है। हाँ, हम अगर पिछड़ों के आरक्षण की बात करें, पिछड़ों का आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियों में नहीं मिल रहा है, उसकी बात की जाए तो हम जातवादी, हम समाजवादी स्वीकार करते हैं कि हम जातवादी हैं। अगर आपको लगता है कि हम अगर पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, किसान मजदूर उनके हकों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की बात को दोहराती रहेगी, पिछड़ों के हक की लड़ाई को लड़ती रहेगी। आप हमें जातिवाद कहते रहें, हम लेकिन समाजवादी लोग पिछड़ों के हक, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। All right, Mr. Ameek Jamei and Miss Anila Singh ji, thank you for speaking to CNN News 18.